The Lord says in Deuteronomy 7 and verse 13, व्यवस्था विवरण 7:13 में प्रभु कहता है, I will love you, मैं आपसे प्रेम करूंगा, I will bless you, मैं आपको आशीष दूंगा and I will increase you. और मैं आपको बढ़ाऊंगा। I will increase. मैं आपको बढ़ाऊंगा, I will increase. मैं आपको बढ़त दूंगा। This is God's promise for you today. ये आज के लिए परमेश्वर का वायदा है। I will increase. मैं आपको बढ़ाऊंगा। Today the increase is coming. आज वो बढ़त आ रही है। And the Bible says in Isaiah 51 and verse 2, और यशायाह 51 के 2 में बाइबल कहती है, God did it for Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के लिए किया, He called him उसे बुलाया, and He blessed him उसे आशीष दी and He increased him. और उसे बढ़ाया। Let not your heart be troubled. आपका ये दिल व्याकुल न हो। The one who has called you will bless you and increase you today. जिसने आपको बुलाया है वो आशीष देगा और बढ़ाएगा। Say in your heart, God is going to increase me to great heights. अपने दिल में कहो कि परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों तक बढ़ाएगा। Increase my family. मेरे परिवार को बढ़ाएगा। Increase my business. मेरे व्यवसाय को बढ़ाएगा। Increase my ministry. मेरी सेवकाई बढ़ाएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। God is sending an increase in you. प्रभु आपको वो बढ़त दे रहा है। Let not your heart be troubled. आपके दिल व्याकुल न हो। In what all things He is going to increase you? किन किन बातों में वो आपको बढ़त देगा? In John 3 and verse 30, यूहन्ना 3 का 13, John the Baptist says, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, He must increase वो बढ़े and I must decrease. मैं घटूं, I must decrease मैं घटूं and He must increase. और वो बढ़े। I, John the Baptist, should decrease, मैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता घटे, but Jesus should increase. लेकिन यीशु बढ़े। Jesus should increase. यीशु बढ़े। That's what is going to happen to you right now. और इसी समय आपके साथ यही होने जा रहा है। Yes, from now on, it's not going to be you anymore, but Christ living in you. अब से आप नहीं लेकिन मसीह बढ़ेगा जो आप में रहता है। Right now, the power of God is coming upon you to transform you into the image of Jesus. और अभी परमेश्वर की सामर्थ्य आप में आ रही है कि आपको यीशु के स्वरूप का बनाए। That's the greatest blessing you can have. ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष है। In 1 John chapter 4 and verse 4, और ये पहला यूहन्ना 4 के 4 में the Bible says, greater is He that is in you than he that is in the world. बाइबल में लिखा है कि आपके अंदर जो है वो इस संसार वाले से भी ताकतवर है। Yes, the world has the wicked powers, हाँ, इस संसार में दुष्ट ताकतें the हैं, evil powers. दुष्ट शक्तियां हैं। But then, how can you overcome him? लेकिन आप उस पर जय कैसे पाएंगे? Only when Jesus increases in you. केवल तब जो यीशु आप में बढ़ेगा। So He says, I will increase in you, my children, और वो कहता है कि मेरे बच्चों मैं तुम में बढ़ूंगा, so that you can overcome the wicked devil जिससे कि आप दुष्ट शैतान पर जय पा सकें, who is trying to increase in your life and put all the obstacles in your life for your blessing. जो आपकी जिंदगी पर प्रभाव डालकर अपने पूरे प्रभाव को आप पर भेजना चाहता है। You see what Jesus said लेकिन यीशु ने क्या कहा? in John chapter 14 and verse 30. यूहन्ना 14 के 13 में He said, see, the prince of this world, the devil, is coming to me, और वो कहता है कि इस संसार का सम्राट मेरे पास आता है, but I have nothing to do with him. लेकिन मेरा उसके साथ कोई लेना I have देना nothing नहीं, to do with him. मेरा उसके साथ कोई लेन देन नहीं। You cannot chase the devil out of the world, आप इस संसार से शैतान को बाहर नहीं निकाल सकते, but you can have nothing to do with him. लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि उससे कोई लेना देना न हो। Yes, you can have him have nothing to do with you. आप ऐसा कर सकते हो कि कोई लेना देना न रहे। With Jesus becoming greater in you, जब यीशु आप में महान बनता the है, devil can never come near you. शैतान आपके करीब कभी नहीं आ सकता। Hallelujah! हालेलुया! Greater is He वो महान है that is in you. जो आपके अंदर है। Today, Jesus is going to increase in you. आज यीशु आपको बढ़ाने जा रहा है, That's why He gives you the Holy Spirit. और इसीलिए वो आपको पवित्र आत्मा देता है, He removes the spirit of the flesh from you और वो आपके अंदर के शारीरिक मोह की आत्मा को दूर करता है, and puts God's spirit within you. और परमेश्वर का आत्मा अंदर देता है। God's spirit within you. परमेश्वर का आत्मा, The spirit of the devil, the spirit of the world is going to be cast out
from your life. आपके जीवन से दुष्ट या शैतान का आत्मा निकाल दिया जाता है। When he goes, the fear of the world also will go. और जब वो जाता है तो संसार का डर चला जाता The है, lust of the flesh will go. और शरीर के मोह अमाया The सब दूर pride of होते, life will go. जिंदगी का प्रताप चला जाता है, Everything of the devil will leave. शैतान का जो कुछ भी था सब छोड़ देता है। Only the Spirit of God will be upon you. केवल परमेश्वर का आत्मा आप पर रहता Only है, the Spirit of God. केवल परमेश्वर का आत्मा। How many of you want the Spirit of God this आप afternoon? में से कितने लोग परमेश्वर की आत्मा को चाहते हैं? Tell him, Lord, उससे कहें, प्रभु you increase. आप बढ़े, You increase in me. मुझ में आप बढ़े। That is the greatest blessing God is giving you right now. परमेश्वर की दी गई सबसे बड़ी आशीष है ये। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Many years ago, कई सालों पहले my father's lungs failed. और मेरे पिता के लंग्स में परेशानी आई। You know, it was a time when Jesus appeared to him और and told him, I'm going to use you to bring healing to others. और वो ऐसा समय था जब प्रभु ने खुद उनसे आकर कहा था कि मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा कि लोगों को चंगाई दे। When Jesus appeared, और जब यीशु प्रकट हुए, it was wonderful. वो बहुत ही अच्छा था। When Jesus said, I'm going to use you, my son Dinakaran, to bring healing to millions of people, it was glorious. और जब यीशु ने आकर कहा कि दिनकरन मैं तेरा करोड़ों के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो महिमामय था वो। But then the prince of the world, the devil, came and put a disease in his lungs. लेकिन उस समय संसार का सम्राट आता है और उनके दिल में, उनके लंग्स में बीमारी देता है। My father was vomiting blood. और मेरे पिता खून की उल्टी कर रहे He was थे। 34 years old. उनकी उम्र 34 थी उस समय, And everybody thought he will die. और हर एक ने सोचा कि ये उनके मरने का समय He आ said गया। he will die. उन्होंने भी कहा कि मैं मरूंगा, But then, लेकिन तब at his deathbed, वो अपने उस मृत्यु सैया पर Satan appeared. शैतान भी प्रकट हुआ। You know, Satan is not a person with long tooth and big horns and big ears. शैतान कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके लंबे दांत हो, बड़े सींग हो या बड़े कान हो। He is a beautiful person. वो एक सुंदर व्यक्ति है। Yes, he was Lucifer, who was the son of the morning. और वो एक लूसीफर है जो भोर का तारा था। He's so beautiful. बहुत ही सुंदर है वो, He speaks so wonderfully. बहुत ही अच्छे से बोलता है He वो, can tempt anybody. और हर एक को परीक्षा में डाल सकता And है। he said, उसने कहा, Mr. Dinakaran, श्रीमान दिनकरन, see what your Jesus has done for you. यीशु ने देखो आपके लिए क्या किया। It's not Jesus who put the disease, it was the devil in the world. लेकिन यीशु ने वो बीमारी नहीं डाली थी, संसार के शैतान ने डाली थी। He said, Jesus called you and he has allowed you to die. और उसने कहा कि यीशु ने आपको बुलाया और मरने के लिए छोड़ दिया। Don't trust Jesus. यीशु पर भरोसा मत रखना, This is what he will do. ये ऐसा ही करता That's है। what the devil said. शैतान ने ये कहा, But follow me. लेकिन मेरे पीछे आ, Become my disciple. मेरा चेला बन जा, I will make you my prophet. मैं तुझे मेरा नबी बनाऊंगा, You will prophesy in the name of the devil, और तू शैतान के नाम पर भविष्यवाणी करेगा, in the name of Satan. शैतान के नाम पर, You will foretell other people's life. और लोगों के भविष्य को तू बताएगा। I'll make you do miracles. मैं तेरे से चमत्कार करवाऊंगा। Yes, I want people to be deceived. मैं चाहता हूं कि लोग धोखे में रहें। But then, लेकिन तब Dinakaran, if you do that, दिनकरन आप यदि ऐसा करेंगे, I'll give you good health. मैं आपको अच्छी तंदुरुस्ती You will दूंगा, never become sick. तुम कभी बीमार नहीं होगे, Because it's the devil only who puts the sickness. क्योंकि शैतान ही तो बीमारी लाता है। He gave the guarantee. उसने गारंटी दी। And then he said, तब उसने कहा, Dinakaran, दिनकरन, money will come and fall at your feet. पैसा तेरे पायों पर आकर यूं पड़ा रहेगा। People will come and throw gold and money at your feet if you follow me, यदि Satan. तुम और शैतान यदि तू मेरे पीछे चले तो लोग अपना सोना और सब तेरे सामने आकर डालेंगे, And I'll make you very famous. और मैं तुझे प्रसिद्ध बना दूंगा। The leaders of the nations will come and fall at your feet. और राष्ट्रों के नेता आपके पास आकर आपके सामने गिरेंगे। Follow me, Dinakaran. हे दिनकरन, तू मेरे पीछे चल, You will have a wonderful life. एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। My father said it was so tempting. मेरे पिता ने कहा, इतनी बड़ी परीक्षा मेरे सामने आई, So tempting. बड़ी परीक्षा। But then लेकिन तब the Holy Spirit within him rose up.
उसके अंदर पवित्र आत्मा उठा। Greater is he who is in you than आपके- he that is in the world. आपके अंदर वो जो महान उससे जो संसार के अंदर है। Oh, the Holy Spirit rose up वो पवित्र आत्मा उठा and he opened my father's eyes. और उसने मेरे पिता की आंखें खोली And he saw Jesus carrying the cross for him. और उसने देखा कि यीशु अपना क्रूस उसके लिए उठाए हैं। Jesus being wounded for him. उसके लिए यीशु घायल है। Jesus carrying his sin. यीशु उसके पाप को वहन कर रहे हैं And Jesus crying, Father, forgive. और उसकी क्षमा के लिए यीशु रो रहे हैं। Jesus being wounded for his sickness to be healed. उसकी बीमारी की चंगाई के लिए यीशु घायल हो रहे हैं। My father turned to Satan मेरे पिता शैतान की ओर मुड़े and said, और कहा, Satan, शैतान, what you say is so wonderful. जो तू कह रहा है अच्छा दिखता है, It is so tempting. बहुत ही परीक्षा में डालने वाली You're चीज है। promising me so many things. इतने सारे वायदे तू कर रहा है, But then, लेकिन Satan, शैतान, you never gave your life for me. तूने अपना जीवन मेरे लिए कभी नहीं दिया। Only Jesus gave his life for me. केवल यीशु ने मेरे लिए जीवन दिया I will trust only Jesus. और मैं केवल यीशु पर भरोसा I will रखूंगा। trust only मैं Jesus. केवल यीशु पर भरोसा Come रखूंगा। on, give him all the glory. जोर से उसको महिमा दे, Praise him. उसकी स्तुति करे, Praise him. उसकी स्तुति करे, Praise him. उसकी स्तुति करे। Only Jesus gave his life for us on the cross. केवल यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जिंदगी दी। Satan will promise 1,001 things, शैतान हजारों और कई वायदे देगा, but he is a thief. लेकिन वो चोर है, He is a killer. वो हत्यारा है, He is a destroyer. वो केवल बम फेंकता है। When he increases within us, जब वो हम में बढ़ता है, darkness and death comes in. केवल अंधेरा और मौत आती है। But when Jesus increases, लेकिन जब यीशु बढ़ता है, there is life. जीवन आता There है, is life. जीवन आता है, There is life जीवन आता है in this world इस संसार में and the world to come. और आने वाले संसार में That's भी। why the Lord says, यीशु ने कहा, I will increase in you, my child. मेरे बच्चे, मैं तुम में बढ़ूंगा। Hi, Jesus will come to you today. यीशु आपके करीब आएगा I'll never allow the devil to increase. और कभी भी अनुमति न देना कि शैतान बढ़े। The devil's darkness to never shall increase in your life. आपके जीवन में शैतान का अंधेरा कभी न बढ़े। I will increase. मैं बढ़ूं, I will increase. मैं बढ़ूंगा। That's why he fills us with the Holy Spirit. इसलिए वो पवित्र आत्मा से हमें भरता है। When the Spirit of Jesus comes, जब यीशु का आत्मा आता है, he transforms us from glory to glory into the image of Jesus himself. वो हमें महिमा से महिमा की ओर बदलकर यीशु का रूप देता है। Jesus wants to increase you in his own image. यीशु आपको अपने स्वरूप में बदलना चाहता In है, his own image. अपने स्वरूप में। Yes, that's why people come to the Jesus Calls Prayer Tower. और इसीलिए लोग जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में आते हैं When they come there, they see Jesus through the prayers of the prayer intercessors. और वहां पे प्रार्थना योद्धाओं के माध्यम से वे लोग यीशु को देखते हैं। As human beings, we may be imperfect. मनुष्य होने के नाते हम सिद्ध नहीं होंगे, We may not be perfect. हम सिद्ध नहीं होंगे, But Jesus who is in us when we pray comes with all perfection. लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर जो यीशु है वो अपनी सिद्धता से आता है And people experience Jesus. और लोग यीशु का अनुभव करते Today हैं। God is giving you that spirit. आज परमेश्वर आपको वही आत्मा देता When है। you go back, जब आप वापस जाएंगे, when you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, people will feel Jesus. लोग यीशु का अनुभव करेंगे। When you live, people will say Jesus is walking with her, walking with him. और जब आप वहां से चलेंगे तो लोग कहेंगे यीशु उसके साथ चल रहा है। You'll be led by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे And the Holy Spirit is going to come upon you in a few minutes. और कुछ ही समय में पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। Jesus will increase in you.
यीशु आप में बढ़ेगा। He is increasing within you. वो आपके अंदर बढ़ रहा है। When Jesus took the 5 loaves in his hands, जब यीशु ने अपने हाथ में 5 रोटियां ली and he looked at the people with compassion, wanting to feed every one of them. और लोगों को उसने तरस से देखा कि हर एक को खिलाए। The 5 loaves in his hands, when he blessed it, multiplied, increased to feed all the people. और अपने हाथों में जब रोटी लेकर आशीष दी तो वो बढ़ने लगी और हर लोगों को उसने खिलाया। From today, Jesus will feed everyone in your family. आज से आपके परिवार में हर एक को यीशु खिलाएगा। Every need of yours will be met by Jesus, आपकी हर जरूरत को यीशु पूरी करेगा। as he will increase your finances, वो आपके धन को बढ़ाएगा, increase favor, आपके प्रसन्नता को बढ़ाएगा, increase prosperity, समृद्धि बढ़ाएगा, increase the blessing for your labor. आपकी मेहनत की आशीषों को The बढ़ाएगा increase is coming in your personal life. और आपके व्यक्तिगत जीवन में उसके आगमन को बढ़ाएगा। When Peter gave him the boat जब पतरस ने उसे नाव दी, in Luke 5:3-5, लूका 5:3-5 में, when he had no fish after fishing the whole night, पूरी रात मेहनत के बावजूद भी जब उसके पास मछली नहीं थी, Jesus made him have 2 boats of fish, यीशु ने इतनी दी कि 2 नावें भर गईं, double portion. दुगुना The भाग। increase will come with double portion. बढ़त आएगी दुगुने भाव के साथ। Let not your heart be troubled. आपके दिल व्याकुल न हो। For whom does he bring these blessings? किनको देता है वो ये आशीषें? In Luke chapter 8, लूका 8 में verses 2 and 3, 2 और 3 में these verses say, ये वचन कहता है, Mary Magdalene and some women were taking care of the personal needs of Jesus with their money. और मरियम मगदलिनी और कुछ बहनें यीशु और चेलों की जरूरतों को अपने पैसे से पूरा करती थी। You are like Mary Magdalene. आप मरियम मगदलिनी की तरह You are हैं। like Peter. आप पतरस की तरह You are हैं। like that little boy who gave the 5 loaves. आप 5 रोटी देने वाले छोटे बच्चे की तरह हैं। You are caring for the ministry of Jesus. आप यीशु की सेवकाई के लिए पड़ा करते हैं And you are caring for the personal needs of Jesus और by serving the servants of God. और परमेश्वर के सेवकों की सेवा करने के द्वारा यीशु की व्यक्तिगत जरूरतों को आप पूरा करते हो। So God is giving you a multiplied increase. तो परमेश्वर आपको बहुगुना बढ़त दे रहा है। You heard a wonderful testimony from Vivian. और आपने विवान से एक अच्छी गवाही He was सुनी। failing in his subjects. वो अपने विषयों में हमने यंग पार्टनर्स प्रोग्राम में एनरोल किया, मैं और मेरे भाई ने। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं बहुत वीक रहा करता था। 12th में क्राइस्ट ने मुझे बहुत अपनी ब्लेसिंग से मेरे 94% आए 12th में ICSE बोर्ड। उसके बाद 12th में ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम के लिए एनरोल किया और एनरोल करने के बाद जितने भी पेपर्स होते हैं, CA एक टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। बिकॉज ऑफ क्राइस्ट मैं हर एक पेपर के पहले, मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी पेपर लिखने से पहले। और केरला में जीसस कॉज का जो प्रे टावर है, मैं उसमें प्रे करा के ही मेरी मदर मुझे भेजती थी। हर एक पेपर पहले ही अटेम्प्ट में निकला। उसके बाद ईश्वर की आशीष ही नहीं ख़त्म हुई। प्रभु यीशु मसीह की आशीष से मैंने अपना खुद का ऑफिस खोला। यीशु मसीह ने मतलब इस यंग पार्टनर्स प्लान में एनरोल करने के बाद ऐसा मुझे लगा कि मेरी लाइफ बहुत ही चेंज हो गई है। You are a blessing to crores of people through Jesus Christ. He became a young partner and supported the ministry through the young partners plan. लेकिन जब उसने यंग पार्टनर्स प्लान के द्वारा सेवकाई में जुड़कर उसने मदद शुरू की, God blessed him in his education. परमेश्वर ने उसकी शिक्षा में मदद दी। Made him pass chartered accountancy in the first attempt. और पहले अटेम्प्ट में ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी को उसने पूरा किया And made him start his own firm. और अपने खुद का उसने अपने ऑफिस खोला। He became the owner of his own firm. अपने खुद के ऑफिस का मालिक बन गया। Isn't that 1,000 times increase? क्या ये 1000 गुना बढ़त नहीं है? Will not God do it for you? क्या परमेश्वर आपके लिए भी नहीं करेगा? How many of you believe that God is going to give you this 1,000 times increase? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे भी हजारों गुना बढ़त देगा? Say thank you, Jesus. कहिए धन्यवाद यीशु। 2 boats full. वो 2
100 गुना भरकर, not just one house. केवल एक घर नहीं, God will give you 2, परमेश्वर आपको 2 देगा, and He will fill it with fish, और वो उसे मछली से भर कर fill देगा, it with blessings. आशीषों से भर कर देगा। That's my faith for your blessing tonight. और ये आपके लिए मेरी विश्वास योग्य आशीषें हैं। And Malachi 3:10 he says, और मलाकी 3:10 वो कहता I है, will open the windows of heaven and pour down a blessing which you cannot hold. मैं आकाश के झरोखे खोलकर इतनी आशीषें बरसाऊंगा जिसे आप रख न I पाओगे। command every debt to come out of your life in the name of Jesus. मैं आज्ञा देता हूं कि हर कर्ज आपकी जिंदगी को छोड़कर निकल जाए। If you're in debt right now यदि अभी आप कर्ज में हैं and you're worried about your debts and loans, और यदि आप अपने लोन के बारे में, कर्ज के बारे में चिंतित हैं, put your hands upon your chest तो अपना हाथ छाती पे and say, रखिएगा Lord Jesus, और कहिएगा, प्रभु यीशु, I believe मैं विश्वास करता हूं an increase is coming. एक बढ़त आ रही है। You're sending an increase. आप एक बढ़त भेज रहे हैं। All my debts will go. मेरे सारे कर्ज दूर होंगे। Would you shout out to Jesus and say, Jesus? क्या आप यीशु के लिए ऊंची आवाज में कहेंगे, यीशु? All my debts will be taken away. मेरे सारे कर्ज उठा लिए जाएंगे। Let it be so, Lord. Let it be so. ऐसा ही हो प्रभु, ऐसा ही हो। In the name of Jesus, let it be so. यीशु के नाम में ऐसा ही हो। Amen. आमेन, Amen. आमेन। In Genesis 26:12 and 13, उत्पत्ति 26 का 12 और 13 में Isaac sowed, obeying God. इसहाक ने प्रभु की मानी और बोया। God gave him 100 times. परमेश्वर ने 100 गुना दिया, 100 times harvest. 100 गुना फसल 100 काटी, times harvest. 100 गुना फसल। If he was harvesting 100 bags, और यदि वो 100 थैले, यदि वो वहां पे फसल के थे, 100 times of that came to him. तो उससे भी 100 गुना ज्यादा उसे मिला। 10,000 bags came to him. 10,000 थैले So उसे वापस much मिले। harvest. इतनी फसल काटी। That is the blessing God is sending upon you. यही आशीष वो आप पर भेजता I है। command it to come upon you and your children from generation to generation, मैं from आज्ञा- this time forth. मैं आज्ञा देता हूं कि इसी समय से पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपके ऊपर, बच्चों पर आना शुरू हो। Not only you, केवल आप नहीं, your children also will prosper. आपके बच्चे भी तरक्की करेंगे। God is mindful of your children. परमेश्वर आपके बच्चों के बारे में भी सोचता है। In Psalm 115 and verse 14, भजन संहिता 115 का 14 it says, कहता है, you and your children will prosper. तू और तेरा वंश आशीष पाएगा। Would you raise your hands अपने हाथों को उठाकर and say, my children कहिए, मेरे बच्चे will prosper. आशीष पाएंगे। My children मेरे बच्चे will increase बढ़ेंगे in wisdom, बुद्धि में, in stature, अपने पदों में, in grace. अनुग्रह में। Amen. आमेन, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Praise God. हालेलुया। Isaiah 54 and verse 13. यशायाह 54 का 13, God will teach your children. परमेश्वर आपके बच्चों को सिखाएगा। He will teach them to walk in righteousness, वो उन्हें सिखाएगा कि वो धार्मिकता में चलें, to walk in love, प्रेम में चलें, loving God and loving the parents. परमेश्वर से प्रेम करें और माता पिता से प्रेम करें, And God will teach them to prosper. और उन्हें समृद्ध बनना सिखाएगा। Great shall be the peace of your children. और आपके बच्चों के ऊपर चैन बड़ा आएगा। How many of you have children? Raise your hands and shout hallelujah. कितने लोगों के बच्चे हैं? अपना हाथ उठाकर ऊंची आवाज में हालेलुया। Your children shall increase आपके बच्चे बढ़ेंगे in wisdom, बुद्धि में, in knowledge, ज्ञान में, in love for God, परमेश्वर के प्रति प्रेम में, love for the parents. माता पिता के प्रति प्रेम में, And whatever they do will prosper. और जो कुछ भी वो करेंगे सफल होंगे। Amen. आमेन। In Jeremiah 30 and verse 20, यिर्मयाह 30 का 20, the Bible says their children will be as in the days of old. They'll be affectionate children.
और वे बच्चे पुराने दिनों के समान होंगे, लगाव से भरे होंगे। Psalm 128 and verse 3. भजन संहिता 128 का 3। Your children will be like olive shoots around you. और आपके चारों ओर जलपाई के पौधों के समान आपके बच्चे होंगे। Your children will be around you always, आपके इर्द गिर्द बच्चे बने रहेंगे, bringing oil of joy to you. और आपको वो खुशी का तेल देते रहेंगे। This is God's promise for you. ये आपके लिए परमेश्वर का वायदा है। Hallelujah. हालेलुया। Because you are righteous. क्योंकि आप धर्मी हैं। Your children will be the seed of the righteous. और आपके बच्चे भी धार्मिकता का वंश होंगे। Your children have to grow as God's righteous generation. और आपके बच्चों को परमेश्वर की धर्मी पीढ़ी के तौर पर बढ़ना पड़ेगा। Godly generation. दैवीय पीढ़ी के तौर पर, Godly generation. ईश्वरीय पीढ़ी। Amen. आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, let your hand come upon your people now. पिता आपके लोगों पर आपका हाथ उतर कर आए। Father, as they have come with so much expectation, बड़ी उम्मीदों के साथ वे आए हैं। let your hand come upon them to bless them, Lord. प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर उतर कर आए ताकि वे आशीषित हो As जाएं। they have come for deliverance, और जैसे वे छुटकारा पाने के लिए आए हैं, Father, deliver your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को आप छुटकारा दिलाइए। Deliver them from the clutches of the evil spirit. दुष्ट आत्मा के चुंगुल से प्रभु आप इनको छुटकारा दिलाइए। Set them free. उन्हें आजाद कीजिए। Set them free, उन्हें O आजाद God, कीजिए प्रभु। from all the oppressions of the evil spirit. दुष्ट आत्मा के सारे तनाव और दबाव से Some परमेश्वर। have even come here with the pain in their chest because of the sufferings in their lives. प्रभु उनके जीवन में कष्ट के वजह से वे लोग परमेश्वर अपने दिलों में प्रभु दर्द को लेकर आए हैं। Father, bring them out of all their problems, Lord. प्रभु उनके सारे संकटों से आप इनको बाहर ले आइए। Touch them and deliver them, Lord. प्रभु स्पर्श कीजिए और उन्हें छुटकारा They दिलाइए। have come here to touch the hem of your garment, प्रभु वे आए हैं यहाँ पर ताकि आपके वस्त्र को वे छू सके, to cling on to your feet, Lord. आपके चरणों में आकर नतमस्तक हो Father, सके। have mercy upon your children अपने बच्चों पर दया कीजिए and deliver them, और Lord. उन्हें छुटकारा दिलाइए। Deliver them, Lord. छुटकारा दिलाइए प्रभु। Bring them out of all their problems. उनके सारे समस्याओं से बाहर ले आइए। Father, no more heartache. प्रभु और कोई दिल का धक्का नहीं No प्रभु, more losing of their family और members. कोई वे अपने परिवार को खो न सके। No more failures in their studies. प्रभु अपने पढ़ाई लिखाई में वे नाकाम न हो, No more losses in their businesses. उनके व्यवसाय में कोई नुकसान न हो प्रभु। Father, some have even lost their jobs. प्रभु ऐसे कुछ है प्रभु जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। Father, give them a job of their own. प्रभु उनके खुद का व्यवसाय हो परमेश्वर। Let all the losses turn into profit. सारे नुकसान फायदे और मुनाफे में बदल जाए। Failure into success. प्रभु नाकाम परमेश्वर कामयाबी में बदल जाए। Poverty into prosperity. प्रभु उन्हें इस तरक्की मोड़ पर ले आइए। Bless them, Lord. उन्हें आशीष कीजिए, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कीजिए। Even now I know your hand is coming upon them to increase them, Lord. प्रभु मैं जानती हूँ आपका हाथ उनके ऊपर उतर कर आए ताकि वे अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी को देख सके। You are going to lift them up to one more step higher. और प्रभु आप उन्हें अपनी जिंदगी में और भी उभारेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Shall we all say thank you, Lord? आइए हम सभी लोग कहें प्रभु धन्यवाद। Come on, praise God. आइए प्रभु की स्तुति कीजिए, Praise God. प्रभु की स्तुति कीजिए। All the past things are leaving you right now. सारे बीती हुई बातें आपको छोड़कर जा रही हैं। New things are coming into your life. आपकी जिंदगी में नई बातें हो रही है। Praise God. प्रभु की स्तुति Praise कीजिए, God. प्रभु की स्तुति कीजिए। God is making a difference between you and others. दूसरों के और आपके बीच परमेश्वर फर्क लेकर आ रहा You है। will stand up. आप खड़े हो जाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। For blessing them, Lord. इनको आशीष करने के लिए, Blessing them, Lord. इनको आशीष करने के They लिए। have cried enough, oh God. प्रभु बहुत रो चुके, बस हुआ। Your people have fasted enough, Lord. प्रभु आपके लोग रो
चुके बस हुआ प्रभु। Let the blessings come upon them, Lord. अब उनके ऊपर आपके आशीष बरस कर आए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Prosper them than before, O God. पहले से भी अधिक अभी आप उनको तरक्की दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, believe God and clap hands and praise God. आइए परमेश्वर पर विश्वास करते हुए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Thank God with all your heart. पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Even now the blessings are coming upon you. अभी भी आपके ऊपर परमेश्वर के आशीष उतर रहे हैं। Receive the blessings. उन आशीषों को ग्रहण कीजिए, Receive the blessings. उन आशीषों को ग्रहण You कीजिए। will go back with all the blessings. आप आशीषों के साथ घर लौटेंगे। As you have sacrificially given, जैसे आपने कुर्बानी के तौर पर दिया है, the Lord is honoring you. परमेश्वर आपका आदर और सम्मान कर रहे हैं। Honoring you. परमेश्वर आदर और सम्मान कर रहे हैं, आपका आदर और सम्मान The कर रहे Lord हैं। is pouring out His blessings upon your lap. आपके गोद में परमेश्वर अपने आशीषों को बरसा रहे हैं। No prayer of yourself is a waste. आपका कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा। God is giving you an answer today. परमेश्वर आज आपके प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। Rejoice. आनंद मनाइए, Rejoice. आनंद मनाइए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। For pouring out your anointing upon your people. अपने लोगों पर आपने अभिषेक को बरसाया, धन्यवाद Let them decrease. प्रभु। वे लोग और But घटते you जाएं, increase in them, Lord. लेकिन आप उनमें बढ़ते जाएं, Increase in them, Lord. उनमें आप बढ़ते जाएं। Thank for all the waiting. इनका इंतजार के The लिए Lord is blessing you today. परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Father, heal all the sicknesses, oh God. पिता इनकी सारी बीमारियों को आप चंगा The कीजिए। headaches, let them leave in Jesus' name. सर का दर्द इनको छोड़कर चला जाए यीशु के The नाम से। sinuses and allergies, let them leave in Jesus' name. सारे एलर्जी और साइनस की बीमारी इनको छोड़कर चली जाए। Believe God. परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। Miracles are happening now. अद्भुत कार्य हो रहे इस वक्त। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Your kidneys are beginning to work. आपके गुर्दे काम कर रहे हैं, Your heart is becoming new. आपका हृदय नया हो रहा है। Come on, praise God. आइए प्रभु को धन्यवाद The दीजिए। Lord is touching you and healing you right now. परमेश्वर आपको छूकर चंगा कर रहे हैं इस वक्त। The stones in your kidneys are dissolving and disappearing. सारे पथरी और गुर्दे की पथरियां इसी वक्त गायब हो रही है The यीशु के skin नाम से। diseases are being healed right now. त्वचा की बीमारी चंगी हो रही है यीशु के नाम से। Thank God. प्रभु को धन्यवाद Thank दीजिए, God. प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Many are suffering from leg pains. बहुत सारे लोग हैं जिनको पैरों की समस्या The है। Lord is healing you. परमेश्वर आपको चंगा कर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The hip pains are leaving you right now. और कमर का दर्द आपको छोड़कर जा रहा The है। pain in your neck is leaving right now. गर्दन का दर्द आपको छोड़कर जा रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The stiffness in your body is leaving you right now. आपके शरीर में जो भी बीमारियां वो छोड़कर जा रही है, The vertical problems are leaving you right now. और जो भी जोड़ों का दर्द है वो आपको छोड़कर जा रहा है। Touch them and heal them, Lord. प्रभु आप इनको स्पर्श कीजिए और इनको चंगा कीजिए। Heal your people, Lord. अपने लोगों को चंगा Let the कीजिए। cancers, the fibroids, the cysts, the tumors leave in Jesus' name. और जितने भी गांठों की बीमारियां हैं, जितने भी सिस्ट की बीमारियां, जितने भी रसोलियां की बीमारी है, वो आपको छोड़कर जा रही है। Father, touch them and heal them from all their weaknesses. पिता उन्हें स्पर्श करके आप चंगा कर दीजिए उनकी सारी कमजोरियों से। I rebuke every evil spirit that had brought sickness in their body. सारी दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ नाज़री यीशु के नाम से, जिन्होंने इनके शरीर में बीमारियों को लाया है। Leave in Jesus' इनको name. छोड़कर चली जाए You यीशु के नाम evil से। spirit, leave in Jesus' name. दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए I यीशु के throw नाम you से। to hellfire. मैं तुम्हें उस नरक की आग में भेजती हूँ। Be healed. चंगे
हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ, Be healed in Jesus' चंगे name. हो जाओ यीशु के नाम से। Set them free, O God. पिता इनको आजाद कीजिए। It's enough they have seen the evil spirit, Lord. प्रभु काफी है परमेश्वर, उन्होंने सारे दुष्ट आत्माओं को झेला है अब Deliver तक। your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को छुड़ाइए, Deliver them, Lord. इसी वक्त उनको छुड़ाइए। Have compassion on them, प्रभु उन पर दया कीजिए, करुणा and कीजिए। deliver them, Lord. प्रभु उन्हें छुटकारा दिलाइए, Deliver them, O God. उनको छुटकारा दिलाइए, Set them free right now. उन्हें आजाद कीजिए प्रभु। Let your hand come upon them, Lord. प्रभु आपका छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर उतर Let your कर, nail pierced hand come upon them, Lord. आपका छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर उतर कर आए। Remember your sacrifice on the cross. प्रभु आपने जो कुर्बानी उस कलवरी क्रूस पर दी उसे याद कीजिए And set your people free. और अपने लोगों को छुटकारा दिलाइए, Set your people free. अपने लोगों को छुटकारा दिलाइए। And children are struggling to study. बच्चे पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर अभी भी तकलीफ उठा रहे हैं। Father, help them in their studies, O God. प्रभु उनके पढ़ाई में आप उनकी मदद कीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for blessing darling children. प्रभु दुल्हारे बच्चों को आपने आशीष किया, धन्यवाद। Prosper the children, Lord. प्रभु इन बच्चों को आप तरक्की दीजिए And use them for your glory. और अपने महिमा के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए। As the parents have dedicated their children to do your ministry. जैसे माँ पिताओं ने अपने बच्चों को आपकी सेवा करने के लिए समर्पण किया, For the sake of the parents, bless the children, Lord. उनके माँ पिता के वजह से आप बच्चों को आशीष कीजिए, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कीजिए प्रभु, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कीजिए Let them be blessed generation after generation. प्रभु। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक प्रभु वे लोग आशीषित होते रहे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The problems in the brains, they are being healed by the hand of God. उनके दिमाग में जो भी समस्याएं इसी वक्त परमेश्वर के स्पर्श से वे चंगे हो Touch गए। them and heal them, Lord. प्रभु उन्हें छूकर चंगा कीजिए। The eyes are being healed. आंखें चंगी हो रही हैं। Thank you for touching them and healing them, प्रभु उन्हें Lord. छूकर आपने चंगा किया, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless the children's future, O God. बच्चों के भविष्य को आप आशीष कीजिए Let them have a golden future. और प्रभु उनका भविष्य उज्जवल रहे। Let them not lack in any good thing, O God. प्रभु उनकी भलाई में कोई भी कमी घटी ना हो। Bless them with all the good things. प्रभु भलाई से आप उनको आशीष करें। Prosper them, O God. तरक्की दीजिए प्रभु, Prosper them, O God. तरक्की दीजिए मेरे खुदा। Father, let your special anointing come upon them प्रभु इनके ऊपर आपका खास अभिषेक उतर कर आए, to serve you with all power. ताकि वे पूरे सामर्थ के साथ आपकी सेवा कर सके। With all power. वे पूरे सामर्थ के साथ। Will you give yourself to और God? जब आप परमेश्वर को अपने आप को हवाले करेंगे, Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु। for speaking in their hearts, O God. उनके दिलों में आपने बात की, इसलिए Father, धन्यवाद। take them in your hands प्रभु उन्हें अपने हाथों में लीजिए and use them, और उन्हें Lord. इस्तेमाल कीजिए। Use them mightily, O God. सामर्थ्य रूप से उनका इस्तेमाल Let कीजिए। an army rise up. प्रभु एक सेना खड़ी हो जाए, Let an army of God rise up. परमेश्वर की सेना खड़ी हो जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद ऐसा करने के Thank you, लिए। Lord. धन्यवाद प्रभु। Continue to bless us, Lord. लगातार आशीष करते रहे प्रभु। Let your light shine upon your people. और प्रभु आपका उजियाला इनके ऊपर प्रकाशित हो जाए। Let them see the days of blessing. आशीष के दिन वे देख सके। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम से। God bless. If you have received the Lord in your heart right now, call this number that's on the screen. अगर आपने अपने हृदय में अभी यीशु को ग्रहण किया है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। Somebody will pray with you, कोई आपके साथ प्रार्थना करेगा lead you into the path of righteousness. और आपको धार्मिकता की राह में आगे बढ़ाएगा। Or go to this website, या फिर इस वेबसाइट पर आप जाएं or write a letter or an email to me, या एक पत्र या फिर मुझे एक ईमेल भेजें or come to a prayer tower which is in your city. या आपके शहर में जो प्रेयर टावर है आप वहां आए। You can get the list of prayer towers from our website, jesuscalls.org. आप jesuscalls.org नामक हमारे वेबसाइट से हमारे प्रार्थना भवन की जानकारी पा सकते हैं। Or jesuscalls.com if you're in the United States.
या अगर आप यूएसए में हैं तो jesuscalls.com पर आप ये पा सकते हैं। Yes, you're welcome to come to the prayer tower to be blessed. हाँ, प्रार्थना भवन में आशीषों के लिए आपका स्वागत है। Jesus will bless you. यीशु आपको आशीष God दे। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।